like to request our Honorable Principal Sir to emphasize our school's annual report. I request Shri Narendra Bhai Patil to please give words of wisdom because he has to go and attend another function. So I request him to please come on the stage and kindly give us blessings to our children and our parents. આજના વાલક પાટિયા ખાતે શ્રી સ્વામિનારાયણ મિશન સંકુલના ભવ્ય પ્રાંગણમાં એન્યુઅલ ફંક્શન ઉપસ્થિત આપણા સૌના માર્ગદર્શક આ વિશ્વને શાંતિથી સંદેશ આપનાર આપણા સૌના આદરણીય વડીલ નીલકંઠ સ્વામીજી અને વડતાલના ચેરમેન શ્રી આદરણીય દેવ સ્વામીજીને વંદન સૌ સાધુ સંતોના ચરણો વંદન કરીને મારા પ્રિય મિત્ર ગુજરાત પ્રદેશના ભાજપના સંયોજક ભાઈ કરસનભાઈ ગોંડલિયાજી અને એમની સાથે પધારેલા તમામ સૌ મહાનુભાવો આ સ્વામિનારાયણ મિશન સ્કૂલમાં ભણતા સૌ વિદ્યાર્થીઓ બાળકો અને એમના માતા પિતા મારા વાલી મિત્રો આજના મારા જીવનમાં ઐતિહાસિક પલ કે આ ગુજરાતના આ દેશના સૌથી મોટા સંપ્રદાયના વડીલોના દર્શન અને આશીર્વાદ લેવાની મને તક મળી અને સાથે સાથે આટલી મોટી સંસ્થામાં ભણનારા તમામ બાળકોના પણ દર્શન કરવાની તક મળી આ સંસ્કારિત એવી આપણી સ્કૂલ ને એમાં સૌ શિક્ષક મિત્રો સાથે પધારેલા તમામ વાલીઓના પણ અહીંયા જે દર્શન કરવાની તક મળી છે અહીંયા જે સુંદર રીતે બાળકોની દ્વારા આપણે આવકારનું સંગીત નિહાળે છે એટલે સૌના ખૂબ ખૂબ આવનારા દિવસોના નવા વર્ષના સુરત મહાનગરપાલિકા વતી તમામ વિદ્યાર્થીઓને 2025નું ખૂબ ખૂબ શુભકામના મોકલું છું આવનારું વર્ષ આપ સૌના જીવનમાં સુખ અને સમૃદ્ધિ એશ પામે એવી શુભેચ્છા પાઠવીને સંતોના ચરણો વંદન કરીને મારા વાણીને વિરામ આપું છું જય હિન્દ જય ભારત જય ગરી ગુજરાત. Thank you so much, sir, for best wishes to our school, parents, and students. In the presence of Almighty Lord Sri Swaminarayan, founder of this institution, our beloved Guruji, His Divine Holiness, Shri Nilkant Charan Das Ji Swami, a powerful person of the mission school, Shri Dev Prakash Das Ji Swami, who is the chairman of Vadtal Temple Board, Vishwamangal Das Ji Swami, other holy saints, dignitaries who was present over here, Patil sir, Dinesh Pandey sir, my dear parents, teachers, and the young ones which are very much passionate to showcase their performance in front of you. You can see at the back side, tremendous amount of energy is there. Today, I'm going to present you an annual report of 2024-25 along with the results of 2023-24. As we know, Sri Swaminarayan Mission managed Sri Ramakrishna Hare Krishna Academy. It's a CBSE school, and we have coming up with the academic excellence. Since 22 years, we are into the academic excellence, and our students are bringing laurels, not in the Surat city, not in the state, not in the country, but all over the world. I would like to show you here few students who are accelerating their performances all over the world, in the Europe, US, even in the country also. The institution like AIMS,
NITs. Over there, our students are giving their best performance so that they can make their career brighter. Here I would like to give you a very gist of the result of Standard 12 Science. You can see on the screen, there are 5 students who has brought the laurels for the school. At the same time, in the commerce, around 6 students. And this is the summary of the results of the 12th standard. Around 14 students of standard 10th has scored more than 90% parents. It's a very proud moment for us. And this time, these 14 students, normally they used to change the school. The reason behind that, many students wants to be going in dummy school, but our Swamiji is not allowing those students for dummy. But this year, surprisingly, out of 14 students, all the 13 students are continuing in the school with the 11th standard, which is a very proud moment for us. Now, this is a landmark admissions chart. I can show you here every year. Since 2018-19, from 384 admissions in a year, this year we have got 621 admissions. I bow down my heads to my Guruji, Shri Nilkanth Dasi Swami, and with a heartfelt thanks to Guruji and Dev Swami, because of their blessings, we have got new building. You can see the parents, standard 4 to 7, they have got the new buildings, and in this new building, a very high-tech music lab, dance studio, robotic lab, composite lab, many more labs are there, along with all the interactive classrooms are there. In this digital era, we are also using technology to make our students techno-savvy. Now this slide is little bit worrisome. I should not share with you. ये ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत नहीं है आपके साथ, बट फिर भी आज के टाइम की ये नीड है. आप इसमें देख सकते हो डेटा हिस्ट की बात मैंने की है. हमें 2 साल से पेरेंट्स के कॉल आ रहे हैं कि हमारे बच्चे का नंबर कोई और स्कूल से हमें वो कॉल करते हैं और बहुत सारी लुक्रेटिव ऑफर्स देते हैं, जैसे कि आपके बच्चे को हमारे स्कूल में एडमिशन दीजिए, हम आपके बच्चे को फ्री में पढ़ाएंगे, ट्रांसपोर्ट फ्री देंगे, फूड फ्री देंगे. तो पेरेंट्स ने हमें पूछा कि हमारा डेटा वहाँ कैसे गया. हमने पूरे 1 साल उसका रिसर्च किया, पुलिस डिपार्टमेंट से, साइबर सेल सिक्योरिटी से इंक्वायरी की, और तब जाकर ये पता चला कि सबसे बड़ा मुहिम पूरे इंडिया के अंदर डेटा हैकिंग का है. ये जो डेटा हैकर्स है वो हर एक स्कूल के डेटा हैक करके उसको बेचते हैं, और इसीलिए ऐसी स्कूल्स जहां पर एडमिशन्स की कमी होती है, वो स्कूल्स अलग अलग स्कूल के पेरेंट्स के बच्चों को कॉल करके, उनके पेरेंट्स को कॉल करके ऐसी लुक्रेटिव ऑफर्स देते हैं. और उसकी वजह से कुछ पेरेंट्स जो है वो हमने लास्ट ईयर देखा कि उन्होंने एडमिशन्स लिए. मैं अगर बात करूं एग्जैक्ट डेटा की, तो अराउंड 42 स्टूडेंट्स हमारे स्कूल से एडमिशन्स लेकर गए. बट पेरेंट्स, आप मानेंगे नहीं, विद इन 3 मंथ्स, अप्रैल, मई एंड जून एंड तक हमारे पास 30 स्टूडेंट्स वापस आ गए, 30 बच्चे वापस आ गए. द रीज़न बिहाइंड दैट, वहाँ पर जाने के बाद उनको पता चला कि फ़ीस नहीं भरनी है, बट बाकी सारी भी चीज़ें बहुत ही कम मात्रा में मिल रही है उनको. सो दैट्स अ रीज़न कि मुझे ये आपको यहाँ आज बताना पड़ रहा है कि डेटा हैकिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है, और वो अलग अलग मीडियम से मिलता है डेटा, और उसके ऊपर से, क्योंकि सारी चीज़ें अभी ऑनलाइन हो चुकी है. आप देख रहे हैं कि आपको बस की फैसिलिटी का जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो भी ऑनलाइन मिल रहा है. हमारी स्कूल का जो ऐप है वो भी ऑनलाइन है. हमारी जो गुजरात गवर्नमेंट की जो ऐप है उसमें हम अटेंडेंस, बच्चों की सारी डिटेल्स रखते हैं. तो बहुत सारी जगह है ऐसी जहाँ से इसका डेटा हैक हो सकता है. दैट्स वाई आज ये जो पेरेंट्स है 4th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड के,
उनको मुझे ये लगा कि आज आपको जानना ज़रूरी है कि ऐसे स्कूल्स आपको कॉल कर रहे हैं और उनको डेटा ऐसी जगह से मिल जाता है और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी होती है. आफ्टर दिस, अगेन दिस इज़ अ लॉरेल ऑफ द स्कूल. पेरेंट्स, around 1800 students are studying in standard 4 to 12. Out of 1800, around 102 से ज़्यादा बच्चे जो 100% अटेंडेंस से इस साल में पढ़ाई कर रहे हैं, और उसमें भी 15 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 3 साल से एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली है. हमने ये डेटा यहाँ पर क्यों आपको शो करने की ज़रूरत समझी? यहाँ पर आप देखोगे उसके बेनिफिट्स. The benefits of coming in the school regularly, you can see the child will be in discipline, he can increase his grasping power, he can be active learner, he can be more focused, he can be learning values, because उसी के लिए हमारा स्कूल फेमस है. यहाँ पर संस्कार दिए जाते हैं. अगर बच्चा डेली आएगा तो you can believe that you know how much value he is going to learn. These are the students who has bagged the medal of 100% attendance award. I'm just showing the gist of the students. Also, they are going to come on the stage to take the blessings of our Guruji. Then after, we can see achievements. This is the Avantika competition, which is conducted by an NGO situated in New Delhi. Since 4 years, we are conducting this NGO's competition in the terms of coloring competition, essay writing competition, greeting card making competition. And in these competitions, since 3 years, we are getting third, second, and current year, we have got the first rank in all over India, parents. More than 10,000 schools have participated. 10,000 स्कूल से ज़्यादा पार्टिसिपेशन था. उसमें हमारा श्री स्वामीनारायण मिशन स्कूल फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है. और उनका अवार्ड फंक्शन है अप्रैल मंथ में. हमारे स्वामी जी उस अवार्ड को रिसीव करने जाएंगे. These are the medals won by the students for Avantika competitions. Then after, very famous thing for the sports, as we have only boys in the school, आप समझ सकते हैं उनकी एनर्जी कितनी ज़्यादा होती है. और ये एनर्जी हम चैनलाइज करते हैं स्पोर्ट्स के माध्यम से. चाहे वो वॉलीबॉल हो, कबड्डी हो, हैंडबॉल हो, जिम्नास्टिक हो, खो खो हो, कोई भी गेम हो, CBSE क्लस्टर, खेल महाकुंभ, स्कूल गेम्स में हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है. और उसमें बच्चों ने अच्छी अच्छी मेडल्स प्राप्त करके हमारे स्कूल का नाम रोशन किया हुआ है. सिर्फ स्कूल में ही नहीं, कुछ बच्चे हमारे आउटशाइन है, वो बाहर जाकर अलोहा जैसी कॉम्पिटिशन्स है, कुंफू जैसी है कॉम्पिटिशन्स, कूडोज, कराटे, जूडोज, इन सारी कॉम्पिटिशन में पार्ट लेकर स्कूल का नाम उन्होंने रोशन किया है. इवन क्रिकेट इज ऑल्सो नो मोर लेस इन दिस वन. Then after, we have the school award, most prestigious school jury award by Education Today. In the academic year of 2024-25, we have got the top 100 schools of India में से हमारा स्कूल को बेस्ट हैप्पीनेस्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में अवार्ड मिला हुआ है. And our students have participated in inter-school competitions. These are the trophies for the inter-school competition. This is the thing, very important slides of this today's report. First time our Guruji has thought about this, that nowadays children are looking dull in terms of their psychology also. बच्चे कहीं कहीं पे नर्वस हो रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है, और ये जो मेंटल प्रेशर है उसको काउंसलिंग के द्वारा, हैंड राइटिंग के माध्यम से उनको हम इम्प्रूव करवाने की कोशिश करने के लिए सुरेख हाउस के साथ इनिशिएट किया है हमने. थ्रू आउट द ईयर डिफरेंट क्लास के बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ है. और थ्रू आउट द ईयर सुरेश हाउस की टीम है जो वो हमारे बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को काउंसलिंग के द्वारा, हैंड राइटिंग के माध्यम से बच्चों का इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं. आप देखेंगे अभी हमारे हैंड राइटिंग स्टार्स अगर स्क्रीन पे थोड़ा सा विजिबल होगा तो पहली वाली जो पिक्चर है वो बच्चे की हैंड राइटिंग बिफोर की है, और उसके 2 महीने के बाद बच्चे का हैंड राइटिंग 100% चेंज हो गया है. हैंड राइटिंग चेंज होने से बच्चों का जो है डेवलपमेंट बहुत अलग तरीके से होता है.
Teachers training is a core part of our school so that each one of our teacher will be guiding students in such a way everybody will get success. After that, we have organized a university career fair. 30 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया और फॉरेन कंट्री से यहाँ पर हमारे ऑडिटोरियम में उन्होंने विजिट किया था और इस यूनिवर्सिटी फेयर में सारे स्टूडेंट्स को अभी के करियर के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, कैसे उनका एडमिशन प्रोसीजर है, वो सारी इंफॉर्मेशन बच्चों को दी गई थी और बच्चों ने उनको बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय किया था और इनकी इंफॉर्मेशन मिली थी. दिस इज़ द वेरी नियर एंड डियर थिंग फॉर द गुरुजी. हमारे जो गुरुजी है, एवरी टाइम जब भी फ्री रहेंगे आप उनके हाथ में बुक देखेंगे. अभी जस्ट हम लोग यहाँ आ रहे थे तब भी मुझे गुरुजी ने कहा मुझे ग्रामर की बुक चाहिए. मैंने बोला क्यों गुरुजी? बस पढ़ना है मुझे. आप देख रहे हैं स्क्रीन पे हमने बुक रीडिंग डे रखा था. उसका जो थीम था वो था पढ़ेगा मिशन बढ़ेगा मिशन. दिल्ली के अंदर जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने इसके ऊपर एक मुहिम चलाया था. ऑल ओवर इंडिया में इस मिशन को उन्होंने बढ़ावा दिया था. हमारी स्कूल ने पार्टिसिपेट किया था. हमारी स्कूल में कंटिन्यूस 2 घंटे सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पूरी स्कूल में एक भी मेंबर ऐसा नहीं था जिनके हाथ में बुक थी. बहुत सारे पेरेंट्स भी आए थे. आप देख रहे हैं हमने ये मिशन को पढ़ेगा मिशन बढ़ेगा मिशन को जब स्कूल में एक्टिविटी की, उसके वीडियोस क्लिक किए, फोटोग्राफ क्लिक किए, तब हमें दिल्ली के एनजीओ ने ये रीडिंग टॉर्च अवार्ड स्कूल को दिया था, जो कि पूरे सूरत में सिर्फ हमारे स्कूल को ये मिला हुआ है. बिकॉज रीडिंग is the only activity in today's time which will increase the student strength. आज रीडिंग से ही बच्चे का स्ट्रेंथ बढ़ सकता है. पेरेंट्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट का भी यही कहना है, मोबाइल के ज़माने में अगर बच्चा रीड नहीं करेगा तो उसका ग्रास्पिंग पावर और कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा. So these are the photographs of reading. Second thing is airport activity we have done with the young kids. प्री प्राइमरी के बच्चों के साथ हमने ये जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के माध्यम से बच्चों को इन्फॉर्मेशन दी थी. एयरपोर्ट पे किस तरीके से एक्टिविटी होती है, अलग अलग कैरेक्टर्स बनाए थे हम लोग ने, जैसे पायलट्स होते हैं, होस्ट होता है डिफरेंट मोड्स पे. एंड दिस इज़ द एक्टिविटी फन फेयर, जिनका रिकग्निशन हमें मिला था इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरीट ट्रेनिंग मैनेजमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. 1 महीने पहले हमारे स्कूल में अराउंड 75 प्रिंसिपल्स ऑफ गुजरात सीबीएसई के आए थे यहाँ पर, और उसी दिन 22 और 23 नवंबर को स्कूल में फन फेयर था. सारे पेरेंट्स इसके विटनेस है. सारे पेरेंट्स ने उसको विजिट किया था. और ये जो मैं ISTM की टीम बोल रहा हूँ, जो ट्रेनर्स आए थे प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग देने के लिए, जब उन्होंने ये फन फेयर की एक्टिविटी देखी, उन्होंने देखा ये पार्टनरशिप प्रोग्राम है. किसका? स्कूल मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड पेरेंट्स. सबसे बड़ी यहाँ पार्टिसिपेशन हुई थी पेरेंट्स की, जिसके अंतर्गत बच्चों ने फन फेयर में पार्टिसिपेट करके स्टॉल लगाकर उन्होंने सारी चीज़ें सेल की थी. और ट्रेनिंग में जितने भी प्रिंसिपल्स आए थे और जो ट्रेनर्स थे, उनका मुझे फ़ोन आया था 1 हफ्ते पहले. उन्होंने बोला सर मैं ऑल ओवर इंडिया में 50 ट्रेनिंग आपके स्कूल पे आने के बाद में कर चुका हूँ, और ये वाला जो केस स्टडी है मैंने सारे स्कूल्स में, सारे स्टेट्स में बताया है, क्योंकि उन्होंने ये फोटोग्राफ्स भी लिए थे. मैंने बोला सर इतना आपको क्या खास लगा? उन्होंने बोला जो ये पार्टनरशिप प्रोग्राम है पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स का, ये रियली काबिल तारीफ़ है. इसमें बच्चा मनी मैनेजमेंट, कैसे वर्क मैनेजमेंट होता है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन बच्चा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से सीख लेता है अपने बचपन में. और ये रियली बहुत बड़ा एक्टिविटी आपने किया था, जिसमें पार्टिसिपेशंस भी बहुत अच्छा मिला था हमें. एंड देन वी हैव टेकन द स्टूडेंट्स with the various field for the field trips, because practical learning is the learning in the real sense. So different places पे बच्चे visit किया था. ये जो PRL visit है, इसरो की visit बच्चों ने की थी. EDII हमारे गुजरात में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जहाँ पर बच्चों को बिजनेस कैसे करना है वो सिखाते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने
अहमदाबाद के अंदर EDII इंस्टीट्यूट और उसके साथ एक आई हब इंस्टीट्यूट बनाई है, जहां पर बच्चों को उनके आइडियाज़ अगर अच्छे हैं तो 25 लाख से 2.5 करोड़ का फंड्स देते हैं और बच्चों का स्टार्टअप प्रोग्राम को वो लोग एनकरेज करते हैं। यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स ने विजिट किया था और उन्होंने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशंस वहाँ से गैदर की थी। आई थैंक यू सो मच पेरेंट्स for coming here and witnessing the students' performances, encouraging us throughout the year, continuous support. Along with that, few things will be important, announcements will be there. As per the instructions only, I request the parents to please take the students. Also, every year we are continuously doing the efforts to bring our children best and best, and we are giving them best. And also we are committed to the government instruction also. As per the FRC fees regulation committee, we are taking the fees in the same manner next year also. It will be under the section only. एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँगा मैं कि अगर स्कूल की फीस FRC ने हमें 50,000 कमिट किया है, बट स्टिल वी आर टेकिंग 45,000 ओनली. सो FRC ने जो परमिशन दी है, गवर्नमेंट ने जो परमिशन दी है, उससे भी हम कम फीस ले रहे हैं. इन द सेम मैनर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द सेम थिंग with an increment of around 8 to 10% in the school fees will be there. Thank you so much parents for coming and blessings our children. Thank you. Thank you so much, sir, for your precious words.